سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف کاروباری طبقہ مسلسل احتجاج پر۔ کتابوں، کاغذ اور اسٹیشنری کی سب سے بڑی مارکیٹ اردو بازار کے تاجروں نے آج ہڑتال کی کال دے دی۔ اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس اور دکانوں پر فکس ٹیکس کے خلاف ہڑتال کی کال دی گئی۔ اردو بازار کے تاجروں کی بدھ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال پر جزوی عمل ہوا۔ اکثر دکانیں بند رہیں اور کچھ کھلی رہیں۔ وفاقی بجٹ میں سیلز ٹیکس کے نفاذ سے پینسل، شارپنر اور ربڑ تک مہنگے ہو گئے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس واپس لیا جائے۔ دکانوں پر فکس ٹیکس بھی ناقابل قبول ہے۔ ابھی ایک روزہ ہڑتال کی جا رہی ہے، آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ گورنمنٹ نے اسٹیشنری کے اوپر GST لگا دیا ہے، جس سے چیزوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ قیمت عام عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ فکس ٹیکس بھی ہے، اس میں ہمارے پہ 10,000 روپے مہینے کا ٹیکس زیادہ ہمارے پر لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہڑتال کر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے وہ ٹیکس ہمیں بالکل کوئی منظور نہیں ہے، نہ ہم دے سکتے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اسٹیشنری پر ٹیکس سے تعلیم مزید مہنگی ہو جائے گی۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو آئندہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال کر کے دکانیں بند کر دیں گے۔ برائلر مافیا بیلگام سرکاری ریٹ لسٹ میں زندہ برائلر کی سپلائی گزشتہ کئی روز سے 396 روپے مقرر، مارکیٹ میں سپلائی 430 روپے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں برائلر شاپس بند۔ برائلر ٹریڈر ایکشن کمیٹی کا پریس کلب کے باہر احتجاج، حکومت سے بلیک مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل برائلر کی سپلائی کا معاملہ ہے، جس پر برائلر ٹریڈر ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ آج احتجاج کیا جا رہا ہے، اور شہر کے متعدد علاقوں میں برائلر دکانداروں کی جانب سے برائلر کی سپلائی جو ہے وہ نہیں لی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سرکاری ریٹ لسٹ میں سپلائی کی قیمت مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے سپلائی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، جس کے باعث آج جو ہے متعدد علاقوں میں دکانیں بھی بند کی گئی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت برائلر ٹریڈر ایکشن کمیٹی کے چیئرمین مظہر علی موجود ہیں، جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ مظہر صاحب، یہ بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ شہری جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ مہنگا برائلر گوشت فراہم کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مہنگا مل رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے، یہی معاملات چل رہے ہیں۔ جو سپلائی کا ریٹ ہے، جو گورنمنٹ ریٹ دیتی ہے، اس سے کم از کم 20 روپے کا فرق ہے زندہ کا، جو کہ 40 روپے کا گوشت کا فرق بن جاتا ہے۔ تو ایک دن نقصان کریں گے، 2 دن کریں گے، آج 1.5 ہفتہ ہو گیا، لہٰذا ہم نے دکانیں بند کر دی ہیں اور سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 1 مہینہ بھی چلے گا تو ہم گھر بیٹھ کر نقصان کر لیں گے۔ اس طرح دکانوں پر نقصان بھی کر رہے ہیں، FIR بھی ہم پر ہو رہی ہیں، جرمانے بھی ہم پر ہو رہے ہیں۔ DCO صاحب آتی ہیں، وہ جرمانے کر جاتی ہیں، دکانداروں کو FIR بھی ہوتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ فارمر کو پوچھا جائے، گاڑی والے کو پوچھا جائے، بروکر حضرات کو پوچھا جائے، وہ ہمیں کیوں مال مہنگا دے رہے ہیں۔ اس پر ہماری التجا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ اس پر ایکشن لیا جائے۔ گورنمنٹ کا ہماری طرف سے یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو پوچھا جائے، فارمر کو، بروکرز کو، کہ آپ گورنمنٹ ریٹ جو ایشو کرتی ہے اس پر مال کیوں نہیں دے رہے۔ وہ ہمیں گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق مال دیں گے تو ہم آگے اس ریٹ پر بیچیں گے نا۔ اب 40 روپے کا 50 روپے کا فرق ہے، 10-12 روپے مارجن ہے اس میں، 40-50 ہم کس طرح برداشت کریں۔ آج بالکل آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ دکانداروں کو جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اوور چارجنگ پر، اور مقدمات کا بھی اندراج کیا جاتا ہے، لیکن فارمر اور جو بروکر یا سپلائر ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتے، جس سے قیمتوں میں 50 روپے تک کا جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور متعدد علاقوں میں برائلر شاپس بھی آج بند ہیں، اور شہریوں کو برائلر گوشت جو کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 594 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، اس کے برعکس 650 سے 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا۔ شکریہ عبدالقادر۔ اب آپ کو بتائیں، برائلر کی بلیک مارکیٹنگ جاری، سرکاری نرخ نامہ نظر انداز، پولٹری فارمرز اور بروکرز نے الگ ریٹ مقرر کر لیے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں برائلر دکانداروں نے کاروبار ہی بند کر دیا۔ دوسری جانب سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ برائلر کے دام، دکاندار بھی پریشان۔ برائلر کی بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گڑھی شاہو ریلوے کیریج شاپ اور شمالی لاہور میں برائلر شاپس بند۔ دکانداروں نے ریٹ لسٹ سے مہنگی سپلائی لینے سے انکار کر دیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں سپلائی
सप्लाई रेट 396 रुपए फी किलो मुकर्रर। ब्रोकर्स और फार्मर्स का गठजोड़ 430 रुपए फी किलो सप्लाई देने लगे। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 594 रुपए है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। ओपन मार्केट में लहसुन हरनाई 560, अदरक चाइना 750 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 180, लीमू देसी 650 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। मेथी 320, बैंगन 260, करेले 180 रुपए फी किलो हैं। अरबी 220 और मटर 450 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे। सरकारी रेट लिस्ट में 4 फल मजीद महंगे। खुबानी और खजूर ईरानी 550 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 240 और दर्जा दोम 160 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे। शहरी कहते हैं सब कुछ महंगा हो चुका है। दुकानें आई तकरीबन टोटली बंद है, हड़ताल है। दुकानदार कह रहे हैं जी हमें वारा नहीं खा रहा, ठीक है, 600 में भी नहीं वारा खा रहा। पीछे से सप्लाई उनको बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। आज चंद दुकानें खुली हुई हैं, तकरीबन 750-800 रुपये उनका रेट है। बड़ी परेशानी की बात हुई है। यकीन करें अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आपको पता है 100 ज़रूरत होती है तो बहुत परेशानी है। बड़ा गोश्त वैसे नहीं बंदा खा सकता, छोटा तो वैसे ही आपके सामने ही है। दुकानें बस अपनी मर्ज़ी से रेट लगाते हैं। अब वो छोटे छोटे कागज़ से लिख के गवर्नमेंट भेज देती है प्राइस लिस्ट, वो लगा देते हैं। पहले बड़ा सा लिख के लगाते थे इतना रेट है, अब वो छोटा सा लिख के लगा देते, पता नहीं चलता क्या रेट है। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने से अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान दौर में मंगवाई गई गंदम की अदायगी भी पंजाब हुकूमत के गले पड़ गई। पासों का इम्पोर्टेड गंदम की अदायगियों के लिए 12 महकमा खुराक पंजाब से राबता। 32 अरब 28 करोड़ 90 लाख के बकायाजात की अदायगी की जाए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मजमूई तौर पर 7,62,712 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की मद में 51 अरब की अदायगी की गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान दौरे हुकूमत में मंगवाई गई गंदम की अदायगी भी पंजाब हुकूमत के गले पड़ गई। पास्को का इम्पोर्टेड गंदम की अदायगियों के लिए 12 महकमा खुराक पंजाब से राबता। 32 अरब 28 करोड़ 90 लाख के बकायाजात की अदायगी की जाए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मजमूई तौर पर 7,62,712 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की मद में 51 अरब रुपए की अदायगी की गई। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मामला, पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। 3 मुल्जिमान क्रिमिनल और साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब हैं। मुल्जिमान में बाप, बेटा और भतीजा शामिल। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, वलंशिया टाउन में डॉक्टर शाहिद सदीक को जो है वो कत्ल किया गया था। कातिल उसका बेटा ही निकला था। अब इस केस में मजीद तफ्तीश सामने आई है कि लाहौर पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया है। तीनों मुल्जिमान क्रिमिनल और साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं और जिसकी कातिल हैं। तीनों जो मुल्जिमान हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। मुल्जिमान बाप, बेटा और भतीजा जो है वो शामिल है मुल्जिमान में। मुल्जिमान चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में भी पुलिस को मसरूफ थे। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान जो है वो गाड़ी चोरी में मुतअद्दिद मुकदमात में इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस में चलान हो चुके हैं और जेल में जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद दोबारा जो है वो नए गैंग के साथ ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक पर पहला कातिलाना हमला भी इन्हीं मुल्जिमान ने जो है वो किया है। मुल्जिमान चोरी के मुकदमात में जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है और जो कातिल कयूम जो उसका बेटा है उसको हिरासत में लिया गया है। साथ उसकी एक दोस्त है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और जो दोस्त जिसने जो है वो कयूम से 13 करोड़ की जो है वो लग्जरी गाड़ी मांगी थी और उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस राय का ये कहना है कि उसी 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी की वजह से ही डॉक्टर शाहिद सदीक का जो है वो कत्ल हुआ है और उसका दोस्त जो कि पूरी मनसूबाबंदी में शामिल था उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे भी तफ्तीश का अमल जारी है। ये जो मुल्जिमान हैं ये तीनों बिहाड़ी के हैं और क्रिमिनल हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इस हवाले से पुलिस से कहना है कि इन मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के ये कहना है कि इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और इनसे जो तफ्तीश का अमल है वो जारी है और इस हवाले से वाक़े की पुलिस का कहना है कि कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं। तमाम जो शवाहिद हैं उसकी रोशनी में तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम जो दोस्त है और जो कयूम है और इन्होंने जो है वो जुर्म का इतराफ़ कर लिया। मुदस्सिर।
पंजाब आर्म रूल्स 2023 के तहत असलह लाइसेंस के इख्तियारात महकमा दाखिला पंजाब ने असलह लाइसेंस के इख्तियारात की मुंतकली डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी। इनफरादी असलह लाइसेंस की मुंतकली के इख्तियारात DS जुडिशनल और मुतलका DCs को दे दिया गया। वेपन की तब्दीली, बोर्ड तब्दीली और गोलियों की तादाद में इजाफा के तमाम इख्तियारात DCs के स्पुर्द कर दिए गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब आर्म रूल्स 2023 के तहत असलह लाइसेंस के इख्तियारात महकमा दाखिला पंजाब ने असलह लाइसेंस के इख्तियारात के मुंतकली डिप्टी कमिश्नर्स को कर दी। इनफरादी असलह लाइसेंस के मुंतकली के इख्तियारात DS जुडिशनल और मुतलकी DCs को दे दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज फ्री वाईफाई मंसूबे की तफसीलात सामने आ गई। मंसूबे पर 54 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च होंगे। टेक्नोलॉजी पर 39 करोड़ 13 लाख 3 लाख रुपए के 41 लैपटॉप्स 1 करोड़ 23 लाख रुपए में ख़रीदे जाएंगे। मंसूबा मई 2025 में मुकम्मल होगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। बिल्कुल, पंजाब भर में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत के मंसूबे की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज फ्री वाईफाई मंसूबे पर 54 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च होंगे। मुकम्मल होगा मई 2025 में। जबकि पंजाब स्टेट अथॉरिटी के डिप्टी चीफ टेलीकॉम शोएब सुल्तान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाखरा इरशाद ने तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज फ्री वाईफाई मंसूबे की दस्तावेजात की जांच साद बशीर और शुएब महमूद और एहसन यूनुस ने की है। जबकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज फ्री वाईफाई के दौरान टेक्नोलॉजी पर 39 करोड़ 13 लाख और 3 लाख रुपए के 41 लैपटॉप 1 करोड़ 23 लाख रुपए की खरीदे जाएंगे। जबकि 1 करोड़ 70 लाख रुपए की एक क्रेन, 1 करोड़ 86 लाख रुपए की 1245 CC 6 गाड़ियां और 65 लाख 60 हजार रुपए की 41 मोटरसाइकिल भी खरीदी जाएंगी। जबकि क्रेन, गाड़ियों और मोटरसाइकिल के ईंधन पर 11 लाख 6 हजार रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पंजाब भर में 1630 मुकामात पर 5 MB फ्री वाईफाई जो है उसके राउटर नस्ब किए जाएंगे, जिसका 3 MB जो बिल है वो भी 1250 आपका शुक्रिया हमजा। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आलिया हमजा को 29 अगस्त तक नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की आलिया हमजा के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद इशफाक से मजीद जान लेते हैं। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है और ये कहा है कि नैब, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन कोई भी इदारा आलिया हमजा को अब हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगा। अदालत ने आलिया हमजा के वकील को जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं और इस हवाले से जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल दी है। शुक्रिया इशफाक।